mark with the boundary does Viraj. Straight hit just besides the bowler and gets off the mark with a boundary. Mauli Kudal winning the toss, deciding to bowl first in this encounter. In case if you have joined just now, then this is Battery.ai Mandram Champion Trophy 2025 Season 7. Day 3, Match 5. Mauli Kudal winning the toss, deciding to bowl first against Gumteshwar Salsit. Slow delivery, completely disguised. Viraj way too early with the shot, and the ball didn't arrive. One of our senior most commentators, Mr. Jay Bhosle, was also here earlier. That's gone down in the air and taken quite comfortably down the throat of that fielder. Shrikant Gaude taking the catch. Shrikant Gaukar taking the catch. And Viraj has to depart. He's gone for 4. It's 4 for 1. Really good observation, Mr. Samir Pandre, about that fielder was placed behind on the long on fence. Then he was brought in at mid on, and then the fielder from mid off was sent on the fence. So that's a really good move to get rid of Viraj. Just the ball was placed earlier, back past the bowler for 4. New man in, Matin Khan. Short delivery, quickly onto that one, pouncing all over it. And it's running towards the fence. Fielder won't be able to cut it off. Precarious bit of outfield, but still enough legs to get a boundary. Score moves on to 8 with that boundary. Nikhil Kudav has joined us in the com box with the manual scoring. Ajit Ajrekar is here as well. And also Prashant Adode sir is here. Nicely placed. Some bit of deflection, appealing, but just casually turning it down. Officials in this particular game, Rupesh Gauss and Yogesh Dabolkar, both very experienced umpires. Full toss delivery down the ground, and will get just 1. Single to end the over. After completion of 1, it's 9. 9 for 1 after the first over. Gumteshwar Salsit. And while DJ is having a dinner break, no, he's back.
Gumteshwar Salset, Matin Khan on strike. Right on the pads. And that's given. That's out. Plum in front. Matin Khan looks a bit surprised, but will have to head back in the pavilion. That's gone. Wicket falls. Another wicket, and that too of Matin Khan, who usually tries to anchor the innings and gets scoring relatively easy for his team, but now has to head back in the pavilion. It's 9 for 2 in a spot of bother now. Gumteshwar Salset. Nicely cut away, straight to the fielder. And that will be a dot delivery. Need to get a partnership, these two. If not, then the opposition team is not chasing too many. And so he'll said 50 to 60, what they are targeting to target, just to be that sort of barrier for them to chase down and get a win and move into that quarter-final 3. That will be wide. Extras. Extras coming. This will be handy, these extras. A total of in excess of 70-75. They should look at Gumteshwar Salset. Good delivery again. Missed out on that occasion. Sohail Sheikh is a bit skiddy on this particular wicket. Short man doesn't have that kind of a jump that could create some height, create some impact, or get into the body of the batsman, but just tries to bowl that foolish land deliveries which just skids across at a rapid pace. Again, swing, again missed. Looking to go aerial, but it's not an option right now, with Sohail Sheikh just presenting that fabulous line outside the off stump. Corridor of uncertainty, what we call it. Full toss this time. And that's all directed, would have been close. But the batsman was very quick as well. A single taken. Getting it difficult to find the meat of the blade. 5 deliveries, just the 2 runs. 11 for 2. A wicket as well in this over on the very first delivery. Has been pretty consistent with his line and length. Sohail. Nicely worked. Looking for the single. Will retain the strike. Excellent over coming to an end after completion of the second. It's 12 for 2. 12 for 2 after completion of 2 overs. Gumteshwar Salset. Just conceding 3 runs in that over. You can see how impactful his bowling was. First 2 mandatory batting power play. In fact, the mandatory power play have been done. From the 3rd to the 6th, you can opt for that batting power play, which is that MCT over. All the fielders will be inside the 30-yard ring. You can see it on the screen, the display of this particular match. 11 for the loss of 2 wickets after completion of 2 overs.
Change in bowling. It will be Lokesh Chauhan. So 2 Lokeshes in this team. Lokesh Meena and Lokesh Chauhan. And both this fabulously talented cricketers have been doing wonders for their team. Yes, Lokesh Chauhan. Looking for the reverse. Missed out. Quick delivery outside the off stump. Now just trying that back to the point fielder to come a little closer. Just to close that gap between the short third and the point. Maybe try to be exactly perpendicular to that particular stroke. Let's that one go, and that will be wide. Extras. So far, not so many runs being scored. First 2 overs where you see a lot of hitting abilities that are presented by both the batsmen. But having lost 2 wickets, these two need to build a partnership, and they need to build it very cautiously. Can't afford to play that big hit, big shot. Nicely worked, and will find just 1. This could be that cricket where you are trying to build a big total on the scorecard. You need a solid foundation, and for that solid foundation you need these kind of runs, singles, doubles, and then whenever the opportunity is presented of that boundary, a rare loose delivery, you need to grasp it. Full toss down the ground and down the throat of Lokesh Meena. You can't keep him out of the game. He has been swashbuckling throughout the day. He comes with batting, comes with bowling, and now in the fielding exploits. Lokesh Meena turns MCD 25 into a masterclass of every shot ever written. Bijwa bowled superbly in that previous game, and now up against Lokesh Chauhan. "14 for 3, railing at the moment are Gumteshwar Salsit. They need a miracle to get out of this slump. Nicely played, and will get a single touch and run. You need to be very careful while you are throwing, just that the edge of the pitch might just cause you a few runs with the deflection, as it's being at a certain height. Fabulous lights, a fabulous atmosphere of a cricket stadium. Very good initiative this by the Mandarim boys in this Mandarim Champion Trophy 2025 Season 7. Powered by the Battery.ai. Swing missed. Again trying to go over the top, missed out. Maybe over the mid-wicket fence. Man at wideish long on, and man at square leg on the fence. Man at long off. Extra cover, and back to the point on the fence for that reverse, for that switch.
Swing missed. Again looking for the reverse hit. Missed out completely. After completion of 3 overs, it's 15. 15 for 3 after completion of 3 overs. We'd like to welcome Sri Deepak Kalangutka. Deepak Kalangutka, sir, please take your seat. Social worker from this part of the world. A popular figure as far as politics, cricket, and also this particular venue is concerned. Looking for the reverse, missed out, and will take the single. Sixteen for 3. Man at wideish, long on. Oh, that's down the leg side. Trying for a big hiv. Missed out on that occasion. That's a wide. Swatted away on the onside, and will find just one. At this stage, currently they're just trying to build the castle, and that castle is sometimes mostly peppered by the bowling team. This being the 4th over in progress, needs some kind of a firepower respite to bounce back in this game. That's left alone, and that will be a dot delivery. And the review has been taken. Review for just to check whether it was a wide or not. TV umpire to director, we have a player review for a wide. And check the front foot, it's a fair delivery. Moving on to front on spin vision. Just going in with the angle, roll it through. So it's a fair delivery.
we can move on with the next one. A perfect call by the umpire, Rupesh Gauss, with his verdict. Swing again trying for the big hoik on the onside, missed out. Leg by is the signal given. Runs are very hard to come by as far as this innings is concerned. So many dot deliveries. In total of 13 dot deliveries, this being the fourth over in progress. Needs some kind of boundary linears, but currently they are just finding the fielders. That's an excellent return. It's going over and they will take two. Maybe it would have been throwing it into the hands of the wicketkeeper. Just gone over him. Score moves on to 21. 21 for 3. Last delivery of this fourth over. That's big. And that's gone all the way for 6. It's gone into the stands. And with that 6, it's 27 for 3. 4 overs done and dusted after the halfway mark. Kumteshwar Salset, after being put into bed by the Aimauli Kudar, have managed 27 for the loss of 3 in their 4 overs. Dilip Bejwa batting on 2 and Viru Waghela batting on 11. All eyes on these two outstation players. If they can get as many as possible in the remaining 4, will be change in voice. It will be Samir Pandresar with you in the com box. 3 षटक 4 चेंडू यांच्या सांगत्याखेरीज सर्व काही व्यवस्थितरित्या कुडाळ संघासाठी घडत होतं. मात्र 5व्या चेंडूवर जी फेक झाली त्या फेकीने एक अनावश्यक धाव मिळाली. त्यानंतर स्ट्राईकवर आला विरू वाघेला आणि विरू वाघेल्यानं 4थ्या षटकाची सांगता ही षटकारानं केली. म्हणजे काहीशा ज्या छोट्या चुका असतात त्या किती महत्त्वपूर्ण असतात बघा. पाहायचं आहे त्याची भरपाई कुडाळ क्रिकेट संघ कितपत करतोय. तो 4 षटकांचा खेळ समाप्त. 4 षटकांच्या सांगत्याखेरीज 27 धावा 3 कड्यांच्या मोबदल्यात. 4 षटक म्हणजे 24 चेंडू. या 24 चेंडूंमध्ये तब्बल 13 चेंडू हे निर्धाव गणले जात आहेत. म्हणजे तफावत पहा. 24 चेंडूतील 13 धावा तुम्ही गोलंदाजांचा सन्मान करण्यासाठी खर्च केलायत व ज्या 27 धावा निघाल्यात त्या अवघ्या 11 चेंडूंवर. म्हणजे एकेरी दुहेरी धावांनी जर धावफलक मधल्या कालावधीमध्ये हालता ठेवता आला असता तर काहीशा मजबूत अवस्थेत या ठिकाणी येऊ शकला असता तो फोंडा गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाविरुद्ध या ठिकाणी घुमटेश्वर सारसे क्रिकेट संघ. मात्र घडत नाही. कुडाळ संघ सुरुवातीच्या 4 षटकात बऱ्यापैकी नियंत्रण ठेवतोय. अवघ्या 27 धावा खर्च करतोय. आता मात्र भूमिका या 2 ओव्हरसीज खेळाडूंची पाहणं हे औत्सुक्याचा विषय राहील. कारण डावातील 24 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि धाव फलकावर धावा ह्या अति आवश्यक आहेत घुमटेश्वर सारसे गोवा क्रिकेट संघासाठी. अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ज्याची वर्णी लागली आहे कुडाळ क्रिकेट संघाच्या गोटात, खास राजस्थानवरनं जो आलाय, ज्यानं फलंदाजी तर बहारदार केली. यापूर्वीच्या सामन्यामध्ये 7 षटकार 2 चौकार यांच्या सहाय्यानं वैयक्तिक अर्धशतकाला ज्यानं गवसणी घातली. गोलंदाजी करतानाही 4 गडी टिपले. याही महत्वपूर्ण सामन्यामध्ये आपल्या बोटांची जादू ज्यानं दर्शवली तो बहुधा या ठिकाणी लोकेश मीना हा गोलंदाजीसाठी येतोय व पंचांचा इशारा थेट समालोचन कक्षाकडे येतोय. तो म्हणजे MCT षटकाचा, ज्या षटकामध्ये सर्व खेळाडू हे सर्कलमध्ये तैनात ठेवले जात आहेत. गोलंदाजासाठी कधी काळी हे षटक कर्दनकाळ मानलं जातं. मात्र अपवाद यापूर्वीच्या सामन्याचा, ज्या सामन्यात गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघ फोंडा यांच्याकडनं 1 षटक निर्धाव गणलं गेलं होतं. म्हणजे गोलंदाजांनाही कामगिरी करण्याची संधी आहे. पाहायचंय यामध्ये जीत कोणाची होते, ती गोलंदाज की फलंदाज यांची. डावखुऱ्याचा दिलीप बिजुआ हा खेळाडू क्षेत्ररक्षक रोशनीची पाहणी करतोय. ओव्हरसीज असा खेळाडू खास या ठिकाणी प्रतिनिधित्व आपल्या संघाचं करण्यासाठी मैदानावर उपस्थित. लोअर फुल टॉस मध्ये चेंडू 2 क्षेत्ररक्षकांची अभेद्य भिंत ही भेदली जाते व सरळ डीप कव्हर पॉइंट सीमारेषेच्या पलीकडे चेंडू चौकारासाठी जात. MCT षटकाची सुरुवात ही 4 धावांनी फलंदाज दिलीप बिजुआ हा करतोय व 4 धावांनी तिशी पार करत धावफलक हा 31 धावांपर्यंत पोहोचला जातोय. 31 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात
पाचवं षटक हे प्रगतीपथावर गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज लोकेश मीना खास राजस्थानवरनं आलेला, तर त्याच्यासमोर डावखुराचा फलंदाज दिलीप बिजवा हा त्याला समर्थपणे तोंड देण्यासाठी मैदानावर सज्ज होतोय. प्रत्येकदा एक मोठा फटका सजवायचा होता, मात्र ज्या ठिकाणी अपेक्षित फटका सजवायचा होता त्या ठिकाणी चेंडू मार्गक्रमण न करता चेंडू जातोय तो मिड ऑफला. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक लोकेश चव्हाण आपल्या समोर येतोय, चेंडू अडवतोय व परत एकदा गोलंदाज लोकेश मीना याच्या हाती पुढील चेंडूच्या पूर्ततेसाठी चेंडू सुपूर्द हा केला जातोय. 31-3 गड्यांच्या मोबदल्यात पाचवं षटक हे प्रगतीपथावर. यावेळी आखूड टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटला येतोय, चेंडूला हलकीच दिशा शॉर्ट कव्हरला दिली जाते. चेंडू टोलावता क्षणी एकेरी धाव घेण्याचा मानस हा पूर्णत्वास नेला जातोय. स्ट्राईक रोटेट केली जाते, डावखुरा हाताचा फलंदाज हा नॉन स्ट्राईकला येऊन पोहोचतोय आणि आता मात्र सलामीला आलेला फलंदाज विरू वाघेला ज्यानं एक षटकार टोलविलाय, आपले इरादे व्यक्त केले आहेत, वैयक्तिक 11 धावांवर खेळतोय, त्याला फटकेबाजीची संधी ही प्राप्त होते. एका अचूक टप्प्यावरची नियोजनबद्ध गोलंदाजी नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर आपण आई माऊली कुडाळ क्रिकेट संघाकडनं पाहतोय आणि त्या गोलंदाजीला क्षेत्ररक्षकांची अचूकतेनं साथ ही मैदानावर मिळते. 3 गडी बाद धावसंख्या 32 धावा. फुलरलेन पद्धतीचा चेंडू फटका मारण्याचा विरू निश्चितपणे प्रयत्न करतोय, मात्र वेगानं चकित केलं जाते. बाकीचे सोपस्कार यष्टी मागे छोट्या श्रेणीचा यष्टीरक्षक सोहेल शेख ज्यानं 2 षटकांचा कोटा गोलंदाजीमध्ये पूर्ण केलाय, तो चेंडू आपल्या हलकेच हाती घेतोय व परत एकदा पुढील चेंडूच्या पूर्ततेसाठी गोलंदाज लोकेश मीना याच्याकडे तो सुपूर्द करतोय. 32 धावा. पाचवं षटक प्रगतीपथावर गोलंदाज लोकेश पंचांच्या डाव्या हाताकडनं मारा करतोय. आखूड टप्प्याचा चेंडू केवळ दिशा देण्याचं कार्य अपेक्षित होतं, दिशा दिली जाते, चेंडूला फाईन लेग क्षेत्रात भिरकवून दिलं जाते. महत्वपूर्ण चौकार फलंदाज विरू याच्या माध्यमातून निघतोय व या 4 धावांनी एमसीटी चौकारच्या सहाय्यानं एकंदरीत धावफलक हा विस्थापित होतोय 36 धावांवर. 36 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. एकेरी दुहेरी धावा काढायच्या मधोमध संधी मिळाली, कमजोर चेंडू मिळाला, त्याला सीमारेषा दर्शवायची. सरते शेवटी 6 षटकांच्या सांगतेखेरीज संघाला 60 ते 65 धावांपर्यंत पोहोचवायचं असा मनोदय हा विरू याच्याकडनं दिसतोय आणि त्याच आक्रमकतेनं सजलेल्या रणनीतीनं आपला डाव मैदानावर तो सुरू करतोय. मात्र समोर आहे कोण फलंदाज गोलंदाज, तर तो लोकेश मीना एका अचूकतेनं गोलंदाजी करत प्रत्येक चेंडू मागे विचार मंथन फलंदाजाला करण्यास तो कारणीभूत ठरवितोय. मानथ्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 पर्व 7व याचा थरार गेल्या 2 रजनीमध्ये आपण पाहतोय. एकंदरीत ही स्पर्धा एक सर्वोत्तम अशी स्पर्धा गोवा राज्यामधले गणली जाते. अनेक प्रेक्षकांचा प्रतिसाद मैदानावरनं येतोय आणि मैदानाच्या बाहेरही tenniscricket.in या वेबसाईटवरनं प्रेक्षक वर्ग या स्पर्धेचा आनंद लुटतायत आणि निश्चितपणे प्रेक्षकांच्या डोळ्यांची पारणं फेडणारी अशी ही बहुचर्चित क्रिकेट स्पर्धा आज या स्पर्धेचा 3रा दिवस. उजव्या यष्टी बाहेर स्क्वेअर ऑफ द विकेट सुरेख असा चेंडू. 3रा प्रयत्न सोहेल कडनं झाला होता, कदाचित चेंडू हाती या ठिकाणी टिपण्यात यशस्वीता सोहेलला प्राप्त झाली असली तर दबाव तंत्र अवलंबलं जाऊ शकलं असतं, मात्र चेंडू दगा देतोय सोहेलला, चेंडू दगा देतोय लोकेशला. संभाव्य जीवनदान विरू वाघेला याला प्राप्त होतंय. खेळ समाप्त होतोय 5 षटकांचा व 5 षटकांच्या सांगते अखेरीस 36 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. अशा अवस्थेमध्ये आपण पाहतोय तो संघ कुमटेश्वर सालसेट.
5 गडी बाद 38 काहीसा अडचणीत या ठिकाणी निश्चितपणे घोमटेश्वर क्रिकेट संघ आणि अडचणीतनं संघाला सावरण्यासाठी ज्यानं सातत्यपूर्ण कामगिरी घोमटेश्वर क्रिकेट संघासाठी केली आहे तो तारणहार घोमटेश्वर क्रिकेट संघाचा जुना जाणता अनुभवी असा खेळाडू नरेश याची वर्णी ही मैदानावर लागते. ऑन हॅट्रिक असा गोलंदाज श्रीकांत शक्यतील पुढील चेंडू फेकतो. यावेळी लोअर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू हलके स्लॅश केला जातोय पॉईंट सत्रात. ज्या क्षणी चेंडू तटविला एकेरी धाव घेण्याचा इरादा व्यक्त केला तो व्यक्त केलेला इरादा पूर्णही केला. एकेरी धावेने नरेश स्वतःचं खातं खोलतोय व बराच वेळ धावफलक जो 38 धावांवर कोळंबला होता त्या 38व्या धावसंख्येला 39व्या धावेत हे परावर्तित केलं जातंय. 39 धावा 5 गडी बाद. डावखुऱ्याचा फलंदाज दिलीप बराच वेळ मैदानावर ठाण मांडून बसलेला त्या दिलीपकडनं मोठ्या खेळीची अपेक्षा असेल ती घुमटेश्वर क्रिकेट संघाला एवढं नक्की. श्रीकांत गोलंदाज लोअर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू यावेळी मात्र शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरनं लिलया टोलावला जातोय तो डीप कव्हरला. चौकारासाठी चेंडू निनादतोय. 4 धावांना आत्मविश्वास दिलीपचा वाढतोय. 4 धावांनी 40 पार होते. 43 धावा धावफलकावर झळकलेल्या घुमटेश्वर संघाच्या आपण पाहतोय. मात्र या 43 धावांसाठी त्यांचे 5 खंदेवीर तंबूमध्ये परतत आहेत व 6व्या षटकाची प्रतीक्षा ही मैदानावर सुरू. 6व्या षटकाचा खेळ हा मैदानावर या ठिकाणी चाललाय. परत एकदा लोअर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू यावेळी शॉर्ट कव्हरला टोलवला जातोय. चेंडू टोलवता क्षणी एकेर धाव घेण्याचा प्रयत्न थेट फेकही यष्टिरक्षक सोहेलच्या दिशेनं झाली होती. मात्र यष्ट्यांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न सोहेलचा प्रयत्न राहतोय. एकेर धाव निघते. एकेर धावेने खेळ समाप्त होतोय 6 षटकांचा व 6 षटकांच्या सांगतेखेरीज प्रति षटकामागे 7 धावांपेक्षा किंचितची जास्त धावगती राखत 44 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात असा डोलारा दिसतोय सालसेट घुमटेश्वर सालसेट क्रिकेट संघाचा. दोन्ही संघांचा विचार केल्यास सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक तगडा संघ कुडाळचा तो म्हणजे आई माऊली क्रिकेट संघ तर गोवा राज्याचं प्रतिनिधित्व करतोय घुमटेश्वर सालसेट क्रिकेट संघ. या दोन्ही संघांच्या अस्तित्वाची लढाई. कारण या सामन्यात जर आपण पराभूत झालात तर कदाचित या स्पर्धेला आपल्यास नमस्कार करावा लागेल व जर विजयी ठरलात तर उपांत्य फेरीत प्रवेश करण्यासाठी आपला मुकाबला हा साईश 11 मालवण क्रिकेट संघाशी निश्चितपणे होईल. त्यामुळे दोन्ही संघांसाठी जीवन मरणाची अशी अस्तित्वाची लढाई. या अस्तित्वाच्या लढतीत सुरुवातीच्या 6 षटकांमध्ये नाणेफेकीनं शुभारंभ झाला तो कुडाळ क्रिकेट संघाचा. केवळ नाणेफेक जिंकली नाही, निर्णय घेतला गोलंदाजी करण्याचा. कर्णधाराचा निर्णय सार्थकी ठरविताना सुरुवातीच्या 6 षटकात टिच्चून मारा झाला. तोच टिच्चून मारा पुढील 2 षटकांमध्ये कुडाळ संघासाठी अभिप्रेत असेल. मात्र दुसऱ्या बाजूनं गोवा क्रिकेट संघाचा विचार केल्यास जे काय घडलंय त्याला विसरून नव्या उमेदीनं सामना हा करावा लागेल. लोअर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू ताणला जातोय. चेंडूचा प्रवास होतोय तो मिड विकेटला. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाचा प्रयत्न हा अखेर प्रयत्नच राहतोय. चेंडू सीमा रेषा पार करतोय. दिलीपच्या खाती 4 धावांची जोड मिळते व टाळ्यांच्या गजरात एका उत्कृष्ट अशा प्रयत्नाला कुडाळचा सर्व संघ आणि सर्व क्रिकेट वेगळे क्रिकेट रसिक हे दाद देताना मात्र दिसतायत. अकरा चेंडूंवर 17 धावा 3 चौकाराच्या साह्यानं फलंदाज दिलीप खेळताना दिसतोय. यावेळी फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू टोलवायचा होता तो मिड विकेटच्या दिशेनं मात्र फटका येत नाही. व्यवस्थितरित्या पॅटवर चेंडूचा प्रवास होतोय लॉंग लेगला. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. गचाळ अशी फेक सीमारेषेवरनं यष्टिरक्षकाच्या दिशेनं येते आणि त्यामुळे दुहेरी धावांसाठी काहीसा अडचणीत वाटणारा दिलीप हा 2 धावांचं आव्हान लिलया पूर्ण करतोय. सांघिक अर्धशतकाला गवसनी हा घुमटेश्वर सालसेट क्रिकेट संघ घालतोय. 50 धावा धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. डावातील 7वं षटक प्रगतीपथावर तर 19 धावांवर फलंदाज दिलीप हा सामना करण्यासाठी सज्ज. उजव्या किंचित बाहेर जाणारा चेंडू सन्मान दिला जातोय, सोडून दिला जातोय. बाकीचे सोपस्कार यशरक्षक सोहेल याच्या कर्वी पूर्ण होत आहेत आणि परत एकदा चेंडू हा लोकेश चव्हाण याच्या हाती सुपूर्द केला जातोय. गाझियाबाद मधला हा खेळाडू एका छोट्याशा गावामधनं ज्यानं आपलं क्रिकेटचं संपूर्ण करिअर घडविलं आणि त्यानंतर आपल्या नावाची विशेष छाप ही ऑल इंडिया लेवलला घेण्यास आपल्या अष्टपैलू खेळाईच्या जोरावर ज्या लोकेश चव्हाणनं प्रवृत्त केलं तो लोकेश चव्हाण आज गोवन भूमीवर गोवा राज्याच्या या ऐतिहासिक अशा सुरेश रैना मैदानावर आपल्या संघासाठी भरीव कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करतोय व भरीव कामगिरीनं उपांत्य फेरीच्या प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या उपउपांत्य फेरी सामन्याचे दरवाजे तो निश्चितपणे आपल्या सहकाऱ्यांच्या साथीनं ठोठावतोय. प्रत्येक गोलंदाजी मार्कवर लोकेश चव्हाण
फटका सजवायचा होता. यष्टीरक्षक आणि पहिल्या स्लिपमधील खेळाडू यांच्यामध्ये योग्य समन्वय घडेल का अशी शंकेची पाल चुकचुकत होती. मात्र रुपेश तांडेलचं पूर्वानुमान पहा. चेंडूवर तो ताबा मिळवतोय, चेंडू अडवतोय व निसटणाऱ्या चेंडूवर ताबा मिळवण्याने धावा घेण्याचं स्वप्न हे दिलीप याचं अधुरं राहतंय. पन्नासावा धाव फलकावर धावातील 7वं षटक हे प्रगतीपथावर. लोकेश चव्हाण पहिल्या चेंडूवर चौकार, त्यानंतरच्या चेंडूवर 2 धावा, तिसरा चेंडू निर्धाव, चौथा चेंडू निर्धाव, 4 चेंडूंवर 6 धावा खर्च करतोय. त्याच्या अचूकतेने नटलेल्या गोलंदाजीचा सामना करताना या ठिकाणी संघर्ष करावा लागतोय तो फलंदाज दिलीप याला. लोकेश चव्हाण गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. समोर आहे फलंदाज तो दिलीप. काहीच्या क्षणिक विश्रांतीनंतर खेळाला सुरुवात होते. षटकातील 5वा चेंडू फेकण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज लोकेश पंचांच्या उजव्या हाताकडनं डावखुऱ्या हाताने सज्ज. आकुळ टप्प्याचा चेंडू फटका फसतोय, चेंडू हवेत राहतोय. क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी डीप एक्स्ट्रा कव्हरचा चेंडू खाली येत झेल टिपतोय. तो श्रीकांत गावकर हा खेळाडू ज्या सफलतेच्या शोधात होता तो कुडाळ क्रिकेट संघ शोधांती सफलता प्राप्त त्यांना होते. 3 चौकारांच्या सहाय्यानं ज्यानं डोलारा सावरला होता घुमटेश्वर क्रिकेट संघ सालसेट यांचा तो डावखुऱ्याचा तारणहार फलंदाज दिलीप हाही मोठ्या फटक्याच्या आहारी जातोय. त्याचे परिणाम त्याला भोगावे लागतायत व 6वी सफलता आई माऊली कुडाळ क्रिकेट संघाच्या हाती ही 50 धावा खर्च केल्यानंतर लागते. सफलता प्राप्त असा गोलंदाज लोकेश चव्हाण दिसतोय. आपल्या स्पेलची सांगता करण्यासाठी सज्ज होतोय. क्षेत्ररक्षक रचनेत काहीसा फेरबदल केला जातोय आणि हा फेरबदल काय असेल तर या ठिकाणी एक क्षेत्ररक्षक हा डीप स्क्वेअर लेगला, एक मिड विकेटला, एक लॉंग ऑनला आपण पाहतोय, एक डीप लॉंग ऑफला, तर एक खेळाडू डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं तैनात केलेला आपण कुडाळ क्रिकेट संघाच्या माध्यमातून पाहतोय. मधल्या एष्टीवरचा चेंडू निश्चितपणे पायचीतचं संकट, पंचांची बोटी आसमंताच्या दिशेनं आपल्या स्पेलची सांगता गडी टिपत या ठिकाणी लोकेश चव्हाण करतोय. का दूरवरनं एवढा प्रवास करून कुडाळ संघानं माझ्यावर भरोसा दर्शवला याचं मूर्तिमंत उदाहरण आपल्या कामगिरीनं तो सादर करतोय. 2 षटकांच्या कोड्यामध्ये तो खर्च करतोय अवघ्या 9 धावा व प्रतिस्पर्धी संघाचे 3 खंदेवीर तो तंबूमध्ये पाठवत एक प्रकारे घुमटेश्वर सालसेट गोवा क्रिकेट संघाचं कंबरड हे अक्षरशः मोडण्यासाठी सिंहाचा वाटा लोकेश चव्हाण हा गोलंदाज करतोय. 7 षटकांचा खेळ समाप्त. 50 धावा धाव फलकावर गडी बाद होत आहेत. ते 7 धावांची भूक आहे ती निश्चितपणे घुमटेश्वर क्रिकेट संघाला अति महत्वपूर्ण असे शेवटचे 6 चेंडू या डावातील असतील आणि या 6 चेंडूंमध्ये राहिलेल्या 15 तरी धावा जमविणं हे आव्हान असेल नरेश व त्यांच्या साथीदारांसमोर. नरेशमध्ये क्षमता निश्चितपणे आहे मोठे फटके मारण्याची. अनेक वेळा त्याने आपली प्रतिभा सिद्ध केली आहे. मात्र दडपणाखाली आहे तो या ठिकाणी घुमटेश्वर क्रिकेट संघ आणि त्या दडपणाखाली या ठिकाणी आपला सर्वोत्तम खेळ साकारण्याचा प्रयत्न फलंदाज नरेश करण्याचा प्रयत्न करतोय. क्षेत्ररक्षक रुलींची पाहणी करतोय व हे अंतरिम शेवटचं जोखमीचं षटक फेकण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा सितारा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या गोलंदाजांमध्ये त्याचं नाव हे सन्मानानं घेतलं जातं. तो अंकुश बांबार्डेकर डावाची भैरवी घालणारं षटक फेकण्यासाठी सज्ज होतोय समालोचन कक्षाकडनं. 7 षटकांचा खेळ समाप्त. 50 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात 2
मोठे फटके नरेश याच्याकडनं अति आवश्यक आहेत, यात कोणतंही दुमत नाही. क्षेत्ररक्षण रोरशना पहा, सजविताना कसरत करावी लागते ती कुडाळ क्रिकेट संघाच्या करण्याला. त्यामुळे या ठिकाणी काही अंशी वेळ खर्च होतोय. सामन्याच्या सुरुवातीलाच या ठिकाणी पंचांनी सक्त ताकीद दिली होती की 35 मिनिटांमध्ये या ठिकाणी 8वं षटक सुरू होणं अभिप्रेत आहे. त्या अभिप्रेत असलेल्या गोष्टीला बहुधा कुडाळ संघ छेद देतोय. त्यामुळे एक अतिरिक्त खेळाडू सर्कलमध्ये आपण पाहतोय तो कुडाळ संघाकडनं. अचूक अशी या ठिकाणी नियमावली व बिनचूक अशी पंचगिरी. पहिला चेंडू विथ अलॉंग द कार्पेट जमिनीलगत सजविला जातोय. चेंडूचा प्रवास लॉंग ऑनच्या दिशेला एकदा फलंदाज पूर्ण करताय. क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी चेंडू अडवतोय, चेंडूची फेक करतोय. नरेशला नाममात्र एकेर धावेवर समाधान मानावं लागतंय. ज्या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय तो 51 धावांवर. 7 षटक 1 चेंडू यांचा खेळ समाप्त. 51 धावा 7 कार्यांच्या मोबदल्यात. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न सफल ठरतोय. आवश्यक असलेल्या 4 धावांसाठी एमसीटी चौकारासाठी चेंडू मार्गक्रमण करतोय फलंदाज अक्षय याच्या माध्यमातून व या 4 महत्वपूर्ण धावांनी धावफलक पुढे सरकतोय तो 55 धावांवर. एका चौकारावर क्षणिक समाधान न मानता या षटकामध्ये अशाच तऱ्हेचे फटके निघावेत अशी अपेक्षा असेल ती घुमटेश्वर क्रिकेट संघाकडनं. तर दुसऱ्या बाजूने अंकुश भांबार्डेकरचा विचार केल्यास जी चूक घडते त्या चुकीपासून बोध घेऊन अचूक टप्प्यावर कंजूशी गोलंदाजी साकारणं हे त्याच्याकडनं अभिप्रेत असेल. आई माऊली कुडाळ क्रिकेट संघाला 55 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. शेवटचं षटक प्रगतीपथावर. अंतरिम 4 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. स्ट्राईकला फलंदाज अक्षय चौकारानं स्वतःचं खातं खोलतोय व खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. अंकुश भांबार्डेकर याची गोलंदाजी. पुढे सरसावतोय फलंदाज विथ अलॉंग द कार्पेट जमिनीलगत फटका सजवतोय. शॉर्ट कव्हरला खराब असं क्षेत्ररक्षण सोनू याच्या मार्फत आपण पाहतोय आणि नेमकी हीच संधी साधत 1 धाव पूर्ण केली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि बघता बघता 3ऱ्या धावेचा ही किनारा गाठला जातोय. नरेश व त्याचा साथीदार अक्षय यांच्या माध्यमातून या 3 धावांनी धावफलक बदलतोय निश्चितपणे तो 58 धावांवर. पुढे सरसावला होता अक्षय. पददलिताच्या जोरावर जमिनीलगत फटका टोलविला होता. शॉर्ट कव्हरला चेंडू मार्गक्रमण करत होता तो अर्थातच सोनूच्या दिशेनं. सोनूकडनं चूक घडते. केवळ 1 धाव ज्या ठिकाणी मिळू शकली असती त्या ठिकाणी काहीसा खराब असं सोनूचं क्षेत्ररक्षण प्रतिस्पर्धी संघाला 2 धावांचा बोनस देतंय आणि स्ट्राईकवर कोण येतोय तो फलंदाज नरेश. यावेळी ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू फटका सजविला जातोय. चेंडूचा प्रवास घडतोय तो डीप मिड ऑफ क्षेत्रात चौकारासाठी. एक छोटीशी चूक पहा कुडाळ संघाकडनं घडलेली, मात्र त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत. 4 धावा नरेशच्या खाती प्राप्त होत आहेत. चौकारनं 60 पार केली जाते. 62 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. 7 षटक 4 चेंडू यांचा खेळ हा समाप्त. 4 चेंडूंवर तब्बल 12 धावा खर्च करतोय तो कुडाळ क्रिकेट संघ. वेळ काढू धोरण मैदानावर अवलंबलं गेलं त्याची शिक्षा त्यांना मिळते. एक अतिरिक्त खेळाडू सर्कलमध्ये ठेवला जातोय आणि त्यामुळे चौकारांची लयलूट. यावेळी सुरेख असा चेंडू, यॉर्कर लेन पद्धतीचा चेंडू, सुरेख असं कमबॅक. हे अंकुश भांबार्डेकरचं साफ त्रिफळा उडतोय तो नरेश याचा 8वा हादरा बसतोय तो घुमटेश्वर सालसेट गोवा क्रिकेट संघाला. 62 या सांघिक धावसंख्येवर 62 धावा 8 गड्यांच्या मोबदल्यात. शेवटचा चेंडू शेष आणि हा शेवटचा चेंडू खेळण्यासाठी गोवा राज्यातील फिरकीचा जादूगार म्हणून ज्या गोलंदाजाचं सन्मानानं नाव घेतलं जातं, ज्यानं आपल्या कामगिरीनं या मैदानावर यापूर्वीच्या सामन्यात फिरकीची गोलंदाजी म्हणजे काय, फिरकीचा जलवा म्हणजे काय, फिरकीची जादू म्हणजे काय आणि फलंदाजांना खिळवून ठेवणारी गोलंदाजी म्हणजे काय, या सर्व प्रश्नांची उत्तरं दिली एमसीटी षटकामध्ये तो वरद. यावेळी मात्र फलंदाज म्हणून आपल्या समोर येतोय. 62 धावा 8 गड्यांच्या मोबदल्यात. 7 षटक 5 चेंडू यांचा खेळ समाप्त.
सफलताप्राप्त अंकुश पांबार्डेकर आपल्या स्पेलची सांगता करण्यासाठी सज्ज होतोय. समोर आहे तो वरात. यावेळी चेंडू पायाला स्पर्श करतोय. पायथीसाठी हलकी हात मागितली जात आहेत, मात्र पंच सांगतायत की चेंडू डावी यष्टी सोडून जाणारा निश्चितपणे होता. त्यामुळे जरी चेंडूनं पायाला स्पर्श केला तरी बिनधोक इशारा एकेरी धावेचा म्हणजे लेग बाईचा येतोय. एक अवांतर धाव निघते एकेरी अवांतर धावेने. 63 धावा 8 गड्यांच्या मोबदल्यात असा धावफलक या ठिकाणी दिसतोय तो घुमटेश्वर सालसेट गोवा क्रिकेट संघाचा. आणि प्रति षटकामागे 8 धावांची धावगती राखत 64 धावांचं आव्हान ठेवलं जात आहे आई माऊली कुडाळ क्रिकेट संघाला उपांत्य फेरीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी. आजचा दिवस हा निश्चितपणे सोनियाचा दिवस. tenniscricket.in या वेबसाईटला जे स्वप्न उराशी बाळगून tenniscricket.in या वेबसाईटवरनं थेट प्रेक्षेपण सुरू झालं टेनिस बॉल क्रिकेटचं. त्या tenniscricket.in या वेबसाईटनं तब्बल 21 लाख सबस्क्राईबरचा टप्पा गाठलाय आणि एक सर्वोत्तम उच्चांक आपल्या नावे केलाय. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये मध्यांतरामध्ये निखिल कुरव यांनी गुणलेखनाची अतिशय सुरेख अशी भूमिका या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये बजावली. त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार. 8 षटकांचा खेळ समाप्त. एकंदर धावा धावफलकावर 63. पूर्वार्ध आपण पाहिला. उत्तरार्ध हा निश्चितपणे रंजक ठरेल, यात कोणतंही दुमत नाही. आणि हा उत्तरार्ध कशा तऱ्हेने रंगतोय, कोणता संघ अधिराज्य गाजवतोय, उपांत्य फेरीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी कडवी झुंज देतोय, दिमाखातरित्या प्रवेश करतोय हे सांगण्यासाठी आवाजामध्ये बदल होतोय. व खास मुंबई पालघरवरनं ज्यांची वर्णी या संपूर्ण स्पर्धेला लाभली, मराठी आणि हिंदी भाषेच्या आपल्या प्रभुत्वानं ज्यांनी क्रिकेट रसिकांची मनं जिंकली आपल्या ओघावत्या शैलीने, ते आमचे जवळचे मित्र प्रशांत आदेवडे सर आणि त्यांच्या समवेत नाना परब सर. आसोली गावचे रहिवासी, वेंगुर्ला तालुक्यातील एक छोटंसं असं गाव, आणि आपल्या आवाजानं त्यांनी क्रिकेट रसिकांमध्ये आपला वेगळा ठसा उमटवलाय. या द्वयींच्या हाती या सामन्याची सूत्र देतोय व काही क्षणापुरती माझे सहकारी श्याम कलंगुटकर यांच्या समवेत समालोचन कक्षातनं मी आपली रजा घेतोय. ओव्हर टू सर प्रशांत आणि नाना परब सर. थैंक यू सो मच समित जी. पहले पावर प्ले की जो कहानी बिल्कुल आपके स्क्रीन पर है, जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है और गेंदबाजी कमाल की रही है इस मुकाबले में. कसौट पर गेंदबाजी की है गुमटेश्वर बनाम आई माउली कुडाल. ये बहुत बड़ा मुकाबला. 63 रन 8 विकेट के नुकसान पर जो उम्मीद थी बल्लेबाजों से वो बिल्कुल आज पूरी नहीं कर पाए. और इस ट्रक खबर के ऊपर से एक खूबसूरत स्ट्रोक खेला गया. थोड़ा आगे वाली गेंद थी, लेंथ को जल्दी भाप लिया, तो उसके बाद में बदला लिया गेंदबाज ने. शानदार गेंदबाजी इस प्रतियोगिता में गेंदबाजों द्वारा रही है. ये पहली पारी की कहानी और आई माउली कुडाल टीम ने लाजवाब प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में किया है. दूसरा और तीसरा मुकाबला गुमटेश्वर के लिए करोया मोरबाला मैच, और अब उनके सामने खास करके आई माउली कुडाल के सामने लक्ष्य रहेगा 64 रनों का. 64 इज द टारगेट. कॉम बॉक्स में हमारे साथ जुड़ रहे हमारे साथी कमेंटेटर नाना परब सर, आपका भी स्वागत है. इससे पहले समीर जी की एक मीठी आवाज आणि काल एक उल्लेख झाला होता मूळ पुरुष असा, अर्थात आपण बादरकडनं खूप चांगला आवाज, शब्दांवरती असलेली पकड, त्याचबरोबर या ठिकाणी वैविध्य देखील खूप चांगलं. 64 धावांचं आव्हान आहे सामना जिंकण्याकरता. 64 इज टार्गेट. मैदानावरती आणखी एक धमाकेदार मॅच. 48 चेंडूमध्ये 64 धावांचं आव्हान ठेवलं गेलेलं आहे. कुणाला सुटले हाव, कोण खाऊन जाणार आहे भाव, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा सामन्याचा रंगतदार दुसरा डाव. डाव रंगेल, पण आपल्या अमोघ वाणीतनं हिंदी या भाषेमधनं आपल्याला या सामन्याचं धावतं वर्णन घेऊन येत आहेत नाना परब. Thank you, Prashant. So guys, it's Housey time. It's Housey time. परतून एकदा मी हाऊसी घेऊन येतात तुमचे खातीर. हाऊसीचे आमकां कंप्लेंट येवपाक लागले की 50 रुपया बी आमचे कडेन मोडचे ना म्हणून. सो आमी डिसायड केला की आमी डायरेक्ट 3 हाऊसी दितले 100 रुपयांक, 50 रुपयान हाऊस ना. सो हे फावटी 100 रुपयान 3 हाऊसी अँड गेम सेम आसतली. जल्दी 5 आणि प्रायस जावन आसा 5000 रुपीज. एक हाऊसी आमी दिवचे ना, 3 हाऊसी मेळटले 100 रुपया आणि जल्दी 5 गेम आसतली
आणि प्राइज आसतले 5000 रुपीज. आमचे जे भुरगे आहात ते तुमच्या फुड्यान येतले. तुम्ही त्यांच्या कडसून हाऊस घेयात फॉर टू नाईट. ही हाऊसीची गेम आहे ती अशी गेम आहे की तुम्हाला 3 लॉटरी भेटणार आहे 100 रुपयामध्ये. आणि त्या 100 रुपयाच्या 3 लॉटरीमध्ये एका लॉटरीमध्ये 5 नंबर यायचे आहेत. एका लॉटरीमध्ये समजा 5 नंबर आले तर तुम्हाला 5000 रुपये भेटणार. 100 रुपयामध्ये 3 लॉटरी तुम्हाला भेटणार आहेत. आणि मी इथं नंतर नंबर कॉल आउट करणार आणि ते नंबर समजा तुमच्या एका त्या लॉटरीमध्ये 5 नंबर आले तर तुम्हाला 5000 रुपये भेटणार आहे. थँक्यू. थैंक यू सर. चलिए फिर से एक बार मुकाबले की चलते हैं. 64 रन का टारगेट है और गुरुशंत यहाँ पर बॉलिंग मार्ग पर. निधि कोटे का पहला टीम की ओर से महत्वपूर्ण ओवर लेके पहला और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर है. नॉन स्ट्राइक पर सोहेल शेख टीम के कप्तान, आई मौली कुडाल क्रिकेट टीम के, और स्ट्राइक पर बल्लेबाज लोकेश मीना जिन्होंने पिछले मुकाबले में एक धुआंधार बल्लेबाजी की थी. 56 रन बनाए थे, सभी दर्शकों का मनोरंजन किया था. ओ लोकेश मीना स्ट्राइक पर. शुरुआत की पहली गेंद के ऊपर आगे निकले और गेंद को खेला. यहाँ पर मिड विकेट रीजन में गेंद को फील्ड करते हैं, जहां पर वीरू अगेला गेंद को गैदर करते फील्ड करते. 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने. 1 रन के साथ खुद का खाता खोला और टीम का भी खाते की शुरुआत हुई. दोनों टीम की बात की जाए तो गुमटेश्वर सालसेट क्रिकेट टीम 63 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए, और दूसरे समय यहाँ पर गेंदबाजी में बेहतरीन की आई माउली कुडाल क्रिकेट टीम ने. स्ट्राइक पर टीम के कप्तान सोहेल शेख. अच्छी गेंद टॉप पेज लगा, गेंद हवा में खड़ी है. शॉर्ट स्क्वायर लेग में खिलाड़ी मौजूद. वरदा बॉलकर बेहतरीन गेंद को गैदर किया. मिस्टर मैजिशियन यहाँ पे खिलाड़ी है. अखिल जी मेरे को बता रहे बहुत सा अनुभव है अखिल जी के पास. अखिल उनके साथ निखिल कुड़ा 2 दिन के पहले बेहतरीन स्कोरिंग काउंटिंग यहाँ पर कर रहे थे. आज भी बेहतरीन यहाँ पर हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं. निखिल आपका भी स्वागत इस टूर्नामेंट में. और पहली सफलता हाथ में लगते हुए सोहेल शेख का आउट होना. 1 विकेट जल्दी से चलाया जो 64 रन की जवाब में आई मौली कुडाल क्रिकेट टीम. नाना कल भी अगर कहानी देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही थी. 54 रनों का जब आप पीछा कर रहे थे तो 54 रन डिपेंड किए गए थे. कल भी बहुत ही जबरदस्त मुकाबला हुआ था. छोटा टोटल था लेकिन बड़ा बैटल देखने का मौका मिला. जगत सरकार का विकेट जिसने लिया ना वो गुरु शांत बीच मैदान पर बल्लेबाजों को शांत करने का काम कर रहे हैं, परेशान करने का काम कर रहे हैं. शुरुआत बेहतरीन है. इसी तरह से अगर वो विकेट लेते रहे ना तो नाना मैच में मजा आएगा. बिल्कुल सही बात है आपकी सर की, क्योंकि यहाँ पर गुरुशन की शुरुआत की पहली गेंद के ऊपर 1 रन खर्च किया लेकिन दूसरी गेंद के ऊपर विकेट चटका है. बेहतरीन गेंदबाजी करे अपनी टीम के लिए. गुमटेश्वर सालसेट क्रिकेट टीम वरद दाभोलकर भी है. पिछले मुकाबले एक मेडन ओवर और सभी के अनुभव के साथ यहाँ पर खेल रही है. नरू भाई भी यहाँ पर फील्डिंग कर रहे हैं. तो काफी अनुभव के साथ सभी खिलाड़ी गुमटेश्वर सालसेट क्रिकेट टीम के लिए. तो थोड़ा सा फील्ड का नजारा देख रहे हैं. फील्ड में तब्दीली करे जहां पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड की जोड़ी मैदान पर रहती है तो थोड़ी सी दिक्कत बन रही है यहाँ पर फील्डिंग करते हुए. स्ट्राइक पर अब नए बल्लेबाज मिस्टर रूपेश तांडेल. हॅलो. एकच रिक्वेस्ट असा जे आमच्याकडे हाऊजी घेतात पळय ते हाऊजी आम्ही 3 हाऊजीचे बंडल चेक करतले. म्हणजे 3 हाऊजीचे एका ते हाऊजीज आहे. एक हाऊजी आम्ही अलाव करचे ना. दॅट विल बी डिस्क्वालिफाय. जे हाऊजी आम्ही 3 दितात ते 3 हाऊजी फक्त क्वालिफाय करतले आम्ही. लाव चेक करचे ना. थैंक यू सजू भाई. चलिए मुकाबले कर चलते हैं. यहाँ पर कुछ के निकाला गेंद को मौका बन रहा है. यहाँ पर देखिए बेहतरीन एफर्ट लगाया. पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं तो चौथी बार देखिए गेंद को गैदर अप किया. क्या कैच लिया. अद्भुत अद्भुत फील्डिंग. एक्शन रिप्ले tenniscricket.in पर आपको वह देखने का मौका मिलेगा. ये विकेट मिला है. बैटरी.ai विकेट है. बहुत सारा फन, बहुत सारा एंटरटेन. और मैदान के अंदर, मैदान के बाहर, ऑफ टॉप के थोड़ा बाहर गेंद थी.
इस बार वाटरबट का इस्तेमाल किया, बबलू वहां मौजूद है, ये जगलर अच्छा बन सकते हैं। 1 2 3 बार गेंद बिल्कुल इनके हाथ से निकल रही थी, तीसरी बार तीसरे प्रयास में इनको वो विकेट मिला। लेकिन गुरुशांत, जगत सरकार का विकेट मिला ना, इनका आत्मविश्वास 7वें आसमान की तरफ चला गया। आपने 2 शिकार किए, कीर्तिमान के दहलीज पर आप खड़े हैं। सही बात है आपकी सर, क्योंकि यहाँ पर लगा इस ओवर की बात की जाए तो 2 विकेट चटकाए, महत्वपूर्ण 2 बड़ी सफलता हाथ में लग चुके हैं। यहाँ पर पहला विकेट सोहेल शेख का, दूसरा विकेट रुपेश तांडेल का, और नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर चलते, और एक अनुभवी खिलाड़ी पिछले मुकाबले में भी बेहतरीन बल्लेबाजी की, वो बल्लेबाज जोहेल नाइक, माफ कीजिए सोनू कानड़े, नए बल्लेबाज सोनू कानड़े, साथ देना होगा लोकेश मीना का। ना इंटरेस्टिंग मुकाबला है, दर्शक तो इस तरह का मुकाबला देखने के लिए आते हैं। क्या स्टर्निंग स्टार्ट हुआ है। बेहतरीन मुकाबला, दर्शकों की तादाद भारी संख्या में है सर, क्योंकि ऐसा मुकाबला देखने के लिए कम मिलता है, लेकिन ये मुकाबला बहुत ही रोचक रहेगा। दोनों टीम में बहुत फर्क है, दोनों टीम में अनुभवी खिलाड़ी है, तो काफी मुकाबले में रोचक रहेगी। अच्छी गेंद, सेंसिबल क्रिकेट, संयम दिखाया खिलाड़ी ने, आते आते सिंगल बनाया और सिंगल के साथ व्यक्तिगत खुद का खाता खोला। टीम का टोटल स्कोर बनता हुआ 2 रन स्कोर बोर्ड पर, 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ना हैट्रिक बॉल था जिसमें सम्मान दिया गया, और इस वक्त इनफॉर्म बैटर बल्लेबाजी करने के लिए लोकेश मीना, जिन्होंने पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी और टूर्नामेंट का दूसरा अर्धशतक जड़ने का कारनामा किया था। और लोकेश मीना स्ट्राइक पर आगे निकले, यहाँ पर बल्ले के बीचों बीच, और गेंद लगभग सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए एमसीटी चौका, 4 रन के लिए। लोकेश मीना फॉर्म में खिलाड़ी है, बेहतरीन टाइमिंग, एक्शन रिप्ले में आप जरूर देखेंगे किस तरह से स्ट्रोक खेला गया था बल्ले के बीचों बीच, और कदम ताल, सबसे बड़ी बात है कदम ताल अच्छा था। इस बार डांसिंग डाउन द विकेट आगे आए और गेंद के पिच तक पहुंचे और सीधे बल्ले से बल्ले का पूरा चेहरा दिखाया, पावर प्ले चल रहा है उसका फायदा उठाया और बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को खेला गया था। दर्शनीय स्ट्रोक लोकेश मीना का। अनुभव बहुत सा है इस खिलाड़ी के पास, तो जरूर कोशिश करे घुमटेश्वर सालसेट क्रिकेट टीम यही विकेट की, लेकिन ना कोशिश होनी चाहिए। देखिए गेंद को सफल होकर खेला है वाईफाई लेग की रीजन में, जहां पर आउटफील्ड काफी तेज है, खिलाड़ी दौड़ रहे वरात, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर, एमसीटी चौका, 4 रन के लिए। लोकेश मीना इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे हैं, पहले ताकत और उसके बाद में ये शॉट देखे थोड़ा ऑफ टर्म के बाहर चले गए थे, पहले ताकत अब नजाकत, बल्लेबाज ने की हरकत, उनको मिली बरकत, गेंद बॉडी के बाहर 4 रनों के लिए। लोकेश मीना अभी फिलहाल 2 बेहतरीन स्ट्रोक के बाद स्कोर को लेकर चले गए 10 पर 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आई मौली बकुडाल 63 रन बनाए हैं इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में घुमटेश्वर टीम ने 64 का टारगेट दिया गया। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा ना, घुमटेश्वर की ताकत है उनकी गेंदबाजी, वरद जैसे गेंदबाज उनके पास है, मैजिशियन है, जादूगर है, लेकिन पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है और पावर प्ले के पहले ओवर में 10 रन स्कोर बोर्ड पर। बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि पहले ओवर की जब शुरुआत की गुरुशन ने एक इसी ओवर की बात की 2 विकेट झटकाए, पहला विकेट सोहेल शेख का, दूसरा रुपेश तांडेल का, और 10 रन यानी कि आखिरी 2 गेंदों पे ऊपर 2 बड़े शॉट निकले, तो कुल मिला के 10 रन स्कोर बोर्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर। 64 रन का टारगेट है, स्कोर 10 रन, और अभी तक 54 रन मुकाबला जीतने के लिए चाहिए आई मौली कुडाल क्रिकेट टीम के लिए। घुमटेश्वर सालसेट क्रिकेट टीम के लिए बहुत सपोर्टर, गोंद भूमि सिंधुदुर्ग स्तर के भी बहुत दर्शक यहाँ पर इस मैदान पर पहुंचे, सभी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। स्ट्राइक पर सोनू कानड़े, अनुभव की बहुत है इस खिलाड़ी के पास, हल्की हाथ से गेंद को ड्राइव किया, यहाँ पर शॉर्ट मिड ऑफ में यहाँ पर गेंद को फील्ड किया। 11 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 रन पूरा किया। 1 रन के साथ सोनू कानड़े की बात की जाए तो 1 सिंगल 2 सिंगल जरूर निकले इस मैदान पर, तो अनुभव है स्ट्राइक का। गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर वीरू, स्ट्राइक पर लोकेश मीना, सबकी निगाहें उनके ऊपर है, बड़े शॉट के लिए माहिर है, छक्कों चौकों की बौछार उनके बल्ले से हो रही है, सीज हिट करने की कोशिश यहाँ पर कोई सा अलग करने की कोशिश, लेकिन डिप टर्नमेंट में के थोड़े से खिलाड़ी मौजूद थे, मिसफील्ड का फायदा और इसी गेंद के ऊपर रन बने। यहाँ पर
अंपायर का इशारा, ऑफिशियल्स का इशारा 22 का जरूर मिला कमेंट्री बॉक्स के पास। तो मेरे साथ बेहतरीन स्कोरिंग काउंटिंग करते हुए अखिल परब, मेरे साथ एक सुनहरा मौका जहाँ से बेहतरीन कमेंट्रेटर, मराठी हो हिंदी हो, काफ़ी अच्छी कमेंट्री आप सुनते हैं। तो मेरे साथ प्रशांत जी आदौड़े सर, उनके साथ समीर जी पांडरे, और मैं नाना प्रभ सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। और उसके साथ साथ अंग्रेजी कमेंटेटर बेहतरीन कमेंट्री करते हैं श्याम कलगुटकर, ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे। लगभग गुल्ले स्पॉट के ऊपर गेंद पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल मिला इस गेंदबाज के लिए। लेकिन वीरों की बात कीजिए तो काफी अनुभव, ऑलराउंडर खिलाड़ी, अष्टपहलू खिलाड़ी है, उनके ऊपर काफी निर्भर करती है यहाँ पर घुमटेश्वर सालसेट क्रिकेट टीम। बेहतरीन गेंद हल्के से इनको ट्रैप पे यहाँ पर जब तक इनको टैप किया है, एक रन पूरा किया इस दोनों बल्लेबाज ने। सिंगल लिया गया। नाना, सिंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट में लाइफ लाइन माना जाता है। और इस वक्त एक गेंद पर लोकेश मीना बहुत अच्छी पारी खेल रहे हैं। लोकेश मीना 9 पर 4 गेंदों का सामना किया, स्ट्राइक रेट 225 का। ये जबरदस्त बैटल है नाना, वीरू वर्सेस लोकेश, और साप और नेवले के बीच लड़ाई देखने का मौका मिलेगा। हेलो, ये तो दोनों दिखाएगा दोनों टीम के लिए। मेरे ख्याल से दोनों आपस में खिलाड़ी, दोनों बाहर के खिलाड़ी, ओवरसीज खिलाड़ी, तो दोनों के पास दोनों दिखाएगा। लड़ाई होगी उस दोनों के पास, देख सकते हैं। स्विप करने की कोशिश यहाँ पर, जोरदार अपील, और लोकेश मीना सही साबित हुए, सक्सेसफुल हुए सर। सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है। और मैंने पहले कहा कि जिस तरह से ये मुकाबला एक जबरदस्त बैटल होगा, सांप और नेवले के बीच लड़ाई होगी, और वही वाह, लोकेश मीना, वीरू वाघेला, और वाघेला साहब अगर शिकार नहीं करेंगे तो कौन करेगा। विकेट के सामने पाए गए लोकेश मीना। इनफॉर्म बैटर बैक टू द पेवेलियन। ये मैच कमाल का होने के लिए, रोचक बनने के लिए ये विकेट बहुत जरूरी था। बेहतरीन, महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू की जो जरूरत थी मेरे ख्याल से, वो ब्रेक थ्रू दिला अपने टीम के लिए। खासतौर से लोकेश मीना के ऊपर काफी दारोमदार था मैच का। अभी दर्शक भी उनके निगाहें उनके ऊपर थी, क्योंकि पिछले मुकाबले में यादगार पारी के लिए छक्के चौकों की भी बौछार बनी थी उनकी बल्लेबाजी में। तो कुल मिला के स्कोर भी वहीं पर रुक चुका है, जो 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, टूर्नामेंट की अगर कहानी देखें तो गुमटेश्वर ने गेंदबाजी बहुत बढ़िया की, बल्लेबाजी इतनी अच्छी नहीं रही है, तो गेंदबाजी उनकी ताकत है, और वो दिखा तो इस वक्त वीरू वाघेला। उसके साथ दाभोलकर साहब, उनके ऊपर भी निगाह रहेगी। मैजिशियन वरद जो है, ये भी कमाल के खिलाड़ी हैं। और सांगी प्रीमियर लीग में नाना, इनको मैंने देखा था, जबरदस्त गेंदबाजी की थी, मजा आया था। 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर है। दूसरा ओवर, आखिरी गेंद, 37 गेंदों में 51 रनों की जरूरत है। इसका मतलब आंकड़े क्या बता रहे, पिक्चर बहुत सुपरहिट होने वाला है। पिक्चर और तो सर बाकी है, अभी देखने के लिए बहुत मजा आएगा इस मैच के लिए। हाई वोल्टेज ड्रामा के लिए वो स्टेज बन चुका है। दिल की धड़कन बढ़ने वाला मुकाबला सर है, क्योंकि दोनों टीम में बहुत सा अनुभवी खिलाड़ी है। खासतौर से वरद दाभोलकर आना है, तो गेंदबाजी में कमाल की गेंदबाजी खासतौर से वीरू वाघेला ने की है। और नए बल्लेबाज और एक कुडाल से यहाँ पर खेलने वाले आबुत, नॉट स्ट्राइक पर आबुत, अच्छी गेंद हल्के से पैरों के ऊपर डाली हुई थी, गेंद को खेला यहाँ पर, शॉर्ट मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद, यहाँ पर सीधा थ्रो बनता तो खतरा बन सकता, लेकिन दोनों बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित पहुंचे। भरत के ऊपर भी सबकी निगाह रहेगी। फिलहाल स्कोर 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 36 गेंदों का खिलाना बाकी, 50 रनों की जरूरत है। बीच मैदान पर संयम और आक्रमण। जिस वक्त ये मुकाबला शुरू हुआ तब पहले ओवर की कहानी नाना, 2 विकेट गिर गए थे, अब तीसरा विकेट गिर गया इस ओवर में। पावर प्ले समाप्त आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर, नाउ स्कोर 14 पर 3। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है सर, और 14 रन स्कोरबोर्ड पर, प्रति ओवर 7 रन बन रहे। तो पहले ओवर की बात सर की तो 10 रन आए, और दूसरी ओवर की बात कीजिए तो 3 रन और महत्वपूर्ण 1 विकेट जो लोकेश मीना का। और वीरू वाघेला ने बहुत ही सदी गेंदबाजी की है, यहाँ घातक गेंदबाजी की है, रन भी नहीं ज्यादा दिया और शिकार भी किया है। तो जिसकी जरूरत है, अगर ये मुकाबला आपको जीतना है, गुमटेश्वर को ये मुकाबला जीतना है, तो आपको इस तरह की गेंदबाजी की जरूरत है। और आई माउली व कुडाल के लिए एक साझेदार की जरूरत होगी, साझेदारी बनेगी तो उनकी भी गाड़ी पटरी पर आएगी। बिल्कुल सही, मेरे ख्याल से तो जल्दी में लौट चुका है सोहेल शेख और रुपेश तांडेल हो, तो उन्हीं के साथ गेंदबाजी देख से तीसरे ओवर के लिए कौन आ सकता है।
किसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी रखी है टीम कप्तान गुमटेश्वर सालसेट क्रिकेट टीम। तो खास तौर से विक्रम दिखाई दे रहे, विक्रम उर्फ विकी नाइक, उनके ऊपर कप्तान ने भरोसा दिखाया किस तरह से गेंदबाजी कर सकते हैं। सामने बड़े बल्लेबाज है सोनू कानड़े और उनके साथ अबूद मुजावर, ये दो खिलाड़ी मैदान पर। शप्पल होकर खेलने की कोशिश, ऑफिशियल्स का इशारा हमारे तरफ बनता हुआ वाइड बॉल का। वाइड बॉल के साथ शुरुआत की सर ओवर की, क्या बोनस एक तोहफा रन बनेगा सामने वाली क्रिकेट टीम के लिए? देखिए आपके पास बैंक बैलेंस बहुत कम है, अगर खर्चा ज्यादा करेंगे तो परेशानी हो सकती है, इसलिए अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही आपके रन कम है तो ऐसे मुकाबले में ऐसे सिचुएशन में थोड़ी सी गलती बने, एक सदिक लाइन से गेंदबाजी करे अपनी टीम के लिए बेहतर बन सकता है। फिर से एक बार अच्छा कलवे का अच्छा इस्तेमाल किया, स्क्विल किया गेंद को, गेंद स्पाइन लेग रीजन में सीमा रेखा के बाहर, एमसीटी चौका 4 रन के लिए। लाइन से भटके तो पड़ेंगे पटके, दिशाहीन गेंद है तो बल्लेबाज आपको नहीं छोड़ने वाले, पैरों पर गेंद है और एक बार फिर आराम से इत्मीनान के साथ गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। एमसीटी चौके के साथ बल्लेबाज अबूद का खाता इस वक्त खुला है, 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 250 का स्ट्राइक रेट है। सोनू कानड़े के ऊपर भी निगाह रहेगी, स्कोर 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अबूद मुजावर ने अपने 4 रन के साथ खुद का व्यक्तिगत खाता खोला है, उनके ऊपर भी काफी दारोमदार होगा आई मौली कुड़ाल क्रिकेट टीम का। सामने थोड़ा सा चोर बदला गेंदबाजी का, तो राइट हैंड और 2 विकेट से गेंदबाजी करते हुए, लेफ्ट हैंड और 2 विकेट स्विप किया, गेंद को मौका बना और एक बेहतरीन विकेट। वरद दाभोलकर, जिस खिलाड़ी का हम बार बार नाम लेते हैं, वो वरद दाभोलकर बेहतरीन कैच को गैदर करते हुए। कट्टाप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और बल्लेबाज जिस तरह से खेल रहे थे रिवर्स में खेलने का प्रयास किया गया और कामयाबी अपोनेंट टीम को मिली है और समस्या बढ़ रही है। आपके 4 विकेट आपने खो दिए, 19 पर चौथा झटका लगा है। अब बैक टू द पेवेलियन चले गए। एक ऐसा टूर्नामेंट जिसने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, बेस्ट बैटर का अवार्ड भी इनको मिला था, कलमट प्रीमियर लीग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, बेस्ट बैटर का अवार्ड इनको मिला था और स्टार्ट अच्छा था, स्टार्ट अच्छा किया, स्क्वायर लीग की तरफ का चौका और उसके बाद में फैंसी स्ट्रोक खेलने का प्रयास, रैम शॉट खेला गया और जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वरद के बारे में चर्चा हो रही है, उनकी तरफ गेंद चलेगी। वरद वैसे कैच छोड़ने वाले, दूसरा कैच इन्होंने लपका है, स्कोर 19 4 विकेट के नुकसान पर। इंटरेस्टिंग रोचक मुकाबला है ये। बिल्कुल सही सर, लेकिन पिछले मुकाबले की याद करना चाहते हो, एक 123 रन का बड़ा टारगेट, लेकिन इसी मुकाबले में 64 रन का आप पीछा कर रही है, तो पूरी तरह से मुश्किलें पैदा हो रही है आपकी टीम के लिए। गेंदबाजी लाजवाब है, एक सदिक लाइन से गेंदबाजी कर रहे गुमटेश्वर सालसेट क्रिकेट टीम, लेकिन जोएल नाइक वो सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, उनके पास काबिलियत है, फॉर्म में खिलाड़ी है। नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या स्टाइल बल्लेबाजी करनी होगी, महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल आपको बल्लेबाजी करनी होगी। इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वक्त संयम की जरूरत। स्ट्राइक पर जोहेल नाइक सामना करेंगे, इस ओवर की यहाँ पर चेरकानी करने की कोशिश, बाहर जाने वाली गेंद को अब बल्ला घुमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद विकेट कीपर के पास पहुंचते हुए डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी हो रही है। गेंदबाज बबलू जोरे की, स्ट्राइक पर जोहेल नाइक, स्कोर वहीं पर रुका है जो 19 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, 64 रन का टारगेट। सामने गेंदबाज तैयार है, फुल टॉस बनाकर खेला यहाँ पर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर रीजन में गुरुशंत गेंद को फील्ड कर कैरेबियन स्टाइल में गेंद को रोकने की कोशिश, लेकिन बेहतरीन यहाँ पर बैकअप किया दिलीप बेजुआ ने। क्या यहाँ पर देख सकते हैं आप, कैरेबियन स्टाइल में गेंद को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बेहतरीन यहाँ पर क्रिकेट जो बैकअप अच्छा कर रहे थे। रनिंग बिटवीन द विकेट भी अच्छा है, जैसे पटरी के ऊपर ट्रेन दौड़ते हैं वैसी दौड़ विकेट के बीच लगाई दोनों बल्लेबाज ने। जोहेल नाइक में विकेट में बेहतरीन दौड़ लगाते हैं, उनका साथ अच्छा देते हैं सोनू कानड़े। फुल टॉस फिर से एक बार फुल टॉस का फायदा नहीं हुआ, लेकिन संयम दिखा दे रहे जोहेल नाइक को पता है एक साझेदारी की जरूरत है सर। जी हाँ, और फिलहाल इस वक्त तीसरा ओवर है, स्कोर 22 4 विकेट के नुकसान पर। ना आप 64 का पीछा कर रहे हैं, ना कि 90 का। पहले 2-3 ओवर के जो खाने, मतलब 2 ओवर का जो खेल रहा,
ऐसा लग रहा था कि 90 का पीछा कर रहे हैं और जल्दी मैच समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वो 4 विकेट आपने खो दिए हैं। बिल्कुल सही आपके सर बात है। यहाँ पर 22 ही रन बच चुके हैं, तो मेरे ख्याल से मुश्किल बन रहा है। गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है। फुल टॉस गेंद हल्के सेकंड को ट्राई किया, यहाँ पर टॉस कवर दिलीप बिजवा गेंद को डीप कवर बाउंड्री के ऊपर सेकंड को फील्ड करता है, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे है। एक अच्छी यहाँ पर रनिंग बिटवीन विकेट देख सकते हैं। मेरे को जरूर बताया क्या रनिंग बिटवीन विकेट है आप दोनों के बीच, जोहेल नाइक और सोनू कानडे की। और एक बहुत अच्छा ओवर बबलू का। स्कोर 24, 4 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 30 गेंदों में 40 रनों की जरूरत है। 30 गेंदों में 40, इसका मतलब है आप कंट्रोल में, लेकिन समस्या है आपके 4 विकेट और 1 ओवर ऐसा है जिसमें सारे खिलाड़ी दायरे के अंदर रहेंगे। एमसीटी ओवर आना बाकी है। सही वक्त का इंतजार करना है और जैसे शेर शिकार करता है उसी तरह से आपको शिकार करना है, हमला करना है अपोनेंट टीम के ऊपर। और वो हमला सही तरीके से कौन करेगा ना, वो देखना बहुत जरूरी है। और वरद जिनके ऊपर कैमरा रहेगा, सबकी निगाह रहेगी, इंटरेस्टिंग ओवर होगा, किसके हाथ में गेंद जाएगी देखने वाली बात है। वरद मैडिसन जादूगर मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल सही, जादूमय गेंदबाज है, फिर की गेंदबाज है, बल्लेबाज के लिए पूरी तरह से दिक्कत बनने वाले गेंदबाज है। तो शेर मैदान पर जरूर बनना चाहिए दोनों। मेरे ख्याल से जोहेल नाइक ऐसे खिलाड़ी है, आखिरी उकान तक खेलने वाली बहुत सी क्षमता है उनके। तो जोहेल नाइक उनके साथ सोनू कानडे को साथ निभाना होगा। एक साझेदारी होनी चाहिए सर, वो साझेदारी अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण बनेगी। नाना बल्लेबाजों के लिए मंत्र रहेगा क्रिकेट, डोंट थ्रो विकेट। आपको विकेट नहीं खोना है। और दूसरी तरफ वरद जो है ना, अगर साझेदारी बनती है ना तो तोड़ने का काम करने के लिए आए। एक तरफ मिस्त्री गेंदबाज है, सुनील नारायण को आपने देखा, मेंडिस को आपने देखा, उसी तरह से ये गेंदबाजी करते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो वरद दाभोलकर एमसीटी ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले। यहाँ पर एक मौका बन रहा है, 4थे ओवर की शुरुआत करेंगे वरद दाभोलकर, रेटम और 2 विकेट सामना करेंगे जोहेल नाइक। लो फुल टॉस, यहाँ पर स्वीप किया गेंद को, लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग में खिलाड़ी मौजूद है। जब तक इनको उठाते फील्ड करते हैं तो थोड़ी सी मिस फील्ड, मानसिक दबाव यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर देख रहे थे। गेंद सीमारेखा के बाहर 4 रन के लिए बबलू ने थोड़ी सी मिस फील्ड की। उसके बाद देख सकते कितने यहाँ पर सभी खिलाड़ी यहाँ पर थोड़े से गुस्से में लग रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसे मुकाबले में आपको रन बचाना चाहिए सर। डूबते को तिनके का सहारा, उसी तरह से गेंदबाज के लिए वो फील्डर का सहारा बनना चाहिए। यहाँ बहुत ही खराब फील्डिंग हुई, 1-1 रन बचाना चाहिए। बहुत बेहतरीन गेंदबाज, लेग ब्रेक गेंद बिल्कुल थी, थोड़ा फ्लाइट दी गई थी, स्वीप किया गया था। एक बबलू ने विकेट लिया था इससे पहले, लेकिन फील्डिंग में आज थोड़ा भूलना चाहेंगे, ये मोमेंट जल्दी भूलना चाहेंगे। वापस आने के लिए और बेहतर फील्डिंग करनी होगी और बल्लेबाज को संयम की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं करना, विकेट के ऊपर खड़े रहने की जरूरत। विकेट पर रहना, यहाँ पर रहना चाहिए। मेरे ख्याल से काफी अनुभव है जोहेल के पास और जोहेल वही करना चाहेंगे। सोनू कानडे को सिर्फ साथ देना होगा, लेकिन घुमटेश्वर क्रिकेट टीम देख सकते हैं आप, अच्छी गेंद यहाँ पर गोल्डन स्पॉट के ऊपर गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रहते गेंद को सम्मान दिया बल्लेबाज जोहेल नाइक ने। गेंद को उठाते थ्रो करते तब तक एक सिंगल पूरा किया। रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेला गया था बल्लेबाज द्वारा। सोनू और जोहेल दोनों डिफेंसिव मोड पर चले गए हैं। स्कोर 29, 4 विकेट के नुकसान पर। प्रेस एक बार वरद दाभोलकर कमेंट्री बॉक्स के सामने से फुल टॉस नहीं तो यहाँ पर यॉर्कर जैसी गेंद थी, हल्की सेकंड को ग्लास किया, यहाँ पर शॉर्ट मिड विकेट तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते एक और सिंगल बना कर एक सिंगल के साथ स्कोर भी आगे पहुंचता हुआ। 34 रनों की जरूरत है, 27 गेंदों का खिलाना बाकी है। वरद के खिलाफ आप विकेट नहीं देना चाह रहे, ये प्लान है मैदान के अंदर और रक्षात्मक तरीके से बल्लेबाजी हो रही है। मजा आएगा, अच्छी कॉन्टेस्ट बीच मैदान पर चल रही है। धीमी गति की गेंद फेंकी हुई, लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा सर आता हुआ और व्हाइट बॉल के साथ और एक रन बन रहे, बोनस ये तोहफे में रन दे रहे। लेग ब्रेक करते हैं, ऑफ ब्रेक करते हैं, गुगुड़ी डालते हैं, फास्टर बॉल डालते हैं, वो 4 गेंदे डाल सकते हैं। इस बार कंट्रोल नहीं था, लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद। लेकिन पिछले मुकाबले में जो गेंदबाजी वो इस गेंदबाजी होनी चाहिए थी। देख सकते हैं बाहर की तरफ गेंद लेग स्टंप के गिरने के बाद थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल में ऑफ स्टंप के बाद निकले, लेकिन सम्मान दिया यहाँ पर गेंदबाज को जोहेल नाइक ने। फॉलो थ्रू में गेंद को उठाया। नाना एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लेग ब्रेक कर रहे हैं ना तो ज्यादा गति नहीं दे रहे, टर्न होने का मौका दे रहे, थोड़ा सा हल्का फ्लाइट दे रहे और ये स्टंप के अंदर के मिडल स्टंप पर टिप्पा खिलाया था, ज्यादा रूम नहीं मिला, रक्षात्मक तरीके से बल्लेबाज ने खेल दिया। बिल्कुल सही बात आपकी। तो वरद बॉलिंग बार पर
ये देख सकते हैं, एक बेहतरीन गेंदबाजी, बल्ले यहाँ पर निकाला, बाहर निकाला था, बल्लेबाज से वही कोशिश रहे थे यहाँ पर बल्ला लगाने की, लेकिन वरद दाभोलकर को बेहतरीन गेंदबाजी। ना यहाँ बहुत अच्छी गेंद, इससे पहले थोड़ी गति कम थी, मिड संपर्क गेंद थी, यहाँ थोड़ा गति ज्यादा थी और टर्न किया गया था, बैकफुट में जाके रूप बना के खेलना चाहते थे। क्या बल्ला लगा था? अगर बल्ला लगा था तो ये कैच छूटा है। देख सकते हैं कितनी अंदर तक था यहाँ पर, ऑफ स्टंप गिरने के बाद ऑफ ब्रेक गेंद, जिस यहाँ पर गेंद की बात कीजिए, यहाँ पर ऑफ ब्रेक हो, लेग ब्रेक, अब तो ऑफ ब्रेक गेंद हुई सर, अनप्लेबल, क्योंकि बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर शफल हुए थे, टिप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर रखा गया और गेंद अंदर की तरफ आई, टर्न एंड बाउंस, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। 31 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। सोनू खेत्र 6 पर और जोहेल नाइक की बात करें तो 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार वरद का बहुत ही बेहतरीन ओवर, शानदार मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है। एमसीटी 2025 की अद्भुत कहानी, अब कंपैरिजन 27 पर 3 है, 31 पर 4 है, ज्यादा कुछ फासा नहीं है, 1 विकेट बिल्कुल ज्यादा खोया है, लेकिन दूसरी तरफ से यहाँ 27 मतलब थोड़ा बैकफुट पर टीम थी, अब 31 पर 4 है तो 4 रन आपके पास ज्यादा है, लेकिन 4 विकेट भी आपने खो दी, तो विकेट का फैक्टर बहुत बड़ा रहेगा। इस मैच में मजा आएगा, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदम में जहां होता है। और इस बार बडा मुकाबला बीच मैदान पर जलपान के लिए खेळ रुका हुआ है। या स्पर्धेचे आपले जे प्रायोजक आहेत त्या दिशेने मी थोडासा वळतोय। अत्यंत महत्त्वाचं म्हणजे पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक आहे चॅम्पियन बनणाऱ्या टीमसाठी 9,99,999 महेश कोनाटकर साहेबांच्या माध्यमातून 6,66,666 वेल विशर्स थँक्यू सो मच 3,33,333 दुसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक आहे 6,66,666 वेल विशर्स तुमचेही मनापासून धन्यवाद। त्याचबरोबर रनर अप टीम करता या ठिकाणी जे पारितोषिक आहे त्याचबरोबर सेमी लुजर करता पारितोषिक आहे 3,33,333 शानू फर्नांडिस सोशल वर्कर केरी पेरनेम किरण सावंत पंच मेंबर विलेज मांद्रीम मैदानावरती रंगतदार सामना कुठेही जाऊ नका अत्यंत महत्त्वाचा मॅच आहे tenniscricket.in वरती हा सामना तुम्ही बघताय छोटा टोटल आहे पण बॅटल मोठा आहे मजा येणार या मॅचला 31/4 गणांच्या मोबदल्यामध्ये। इस बार अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड पर खेल दिया क्या ढूंढा गया 1 रन मुकम्मल दूसरे के लिए वापस आए विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों बैटर 2 रन मुकम्मल स्कोर इसी के साथ पहुंच चुका है 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर और बेहतरीन स्कोरिंग करने वाली हमारी टीम बहुत बढ़िया काम बिल्कुल इस वक्त हो रहा है। हमारे डिजिटल स्कोरर जिस तरह से काम कर रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अजीत एक तरफ निखिल हमारे साथ एक तरफ हमारे काबिल दोस्त मिस्टर अखिल निखिल ये दोनों भी कमाल कर रहे हैं और कॉम बॉक्स में नाना गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बोरिक मार पर दिलीप बिजवा स्ट्राइक रन पर सोनू कानडे इस प्लेइंग 8 स्कोर 33 फॉर 4 आई माउली बखिठाल मैदान के अंदर घुमटेश्वर की बात करें तो बढ़िया गेंदबाजी पिछले ओवर में वरद द्वारा रही है। बहुत सारा फन है मैदान के अंदर और दोस्तों आपको और एंजॉयमेंट चाहिए तो आप जा सकते हैं बैटरी जोन में क्यूज एंड क्वेम्स खेलने पर आपको मिलेगा एक रिवार्ड और उसके साथ पावर बैंक सीपर्स बॉटल और ग्रैंड प्राइज होगा आईफोन 17। मैदान के अंदर नाना कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है 33 विकेट के नुकसान पर 33 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 4 यहाँ पर विकेट जरूर लौट चुके, लेकिन गेंदबाजी में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। गुरशन ने शुरुआत की थी, पहले ओवर की बात की जाए तो 10 रन 2 विकेट चटकाए थे, तो दूसरा ओवर वीरू ने, दूसरे ओवर की बात की जाए तो 3 रन और 1 विकेट, ये 2 ओवर महत्वपूर्ण निकले थे। खासतौर से पहला ओवर 10 रन, दूसरा ओवर 3 रन 1 विकेट। तीसरे ओवर की बात की जाए तो बबलू ने शुरुआत की थी, बबलू के इस ओवर में 10 रन और 1 विकेट। चौथे ओवर की वरद दाभोलकर 7 रन और कोई सफलता नहीं हाथ में लगी। ये यहाँ पर लेखाजोखा 4 ओवर का, लेकिन 5वें ओवर की शुरुआत जहां पर देख रहे थे दिलीप बिजवा, दिलीप बिजवा का ये बहुत महत्वपूर्ण दूसरा ओवर है, बहुत इंपॉर्टेंट ओवर। वैसे वो पहला ओवर ही डाल रहे हैं दिलीप बिजवा। 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर आई माउली कुडाल गेंदबाजी कर ले गेंदबाज दिलीप बिजवा सामना करने के लिए सोनू कानडे इस प्लेइंग 8 फील्डिंग फ्लैंक टिप गली बैकफुट पॉइंट इस कवर खराब शॉट हवा में गेंद इस कवर पर गेंद के नीचे खिलाड़ी
बल्लेबाज आउट। वरद का ये तीसरा कैच है। वरद का गेंद पीछा कर रही है। बिजवा साहब बहुत खुश और ये बहुत बड़ा झटका। बैटरी.ai विकेट। सर बिल्कुल सही, वरद को गेंद ही ढूंढ रही है। वरद दाबोलकर जहां है वहां गेंद जा रही है, तो बेहतरीन यहाँ पर ढूंढ रही गेंद, तो यहाँ पर विकेट निकला सोनू कानड़े का। और नए बल्लेबाज मैदान पर मिस्टर लोकेश चौहान। लोकेश ने गेंदबाजी तो बहुत बेहतरीन की, लेकिन बल्लेबाजी में अपना दमखम दिखाने का समय आ गया है। सफलता का दरवाजा खोलने के लिए मेहनत की चाबी को घुमाना पड़ता है, तो बिजवा साहब ने वही किया। इस बार बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की। टप्पा थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर रखा। बल्लेबाज एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, लेकिन दोबारा गेंद ने वरद साहब को ढूंढ लिया। और वरद साहब सबको खुश कर रहे, नाखुश नहीं कर रहे। 3 कैच और वो भी क्लीन कैच, बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने लपके हैं। 33-5 विकेट के नुकसान पर आई माउली। 5 बल्लेबाज डगआउट में आराम फरमा रहे। 64 रनों का पीछा करते हुए स्पक टीम और घुमटेश्वर टीम ने वापसी का बिगुल बजाया है। बल्लेबाज मैदान के अंदर लोकेश चौहान। 9 स्ट्राइक रन पर जोहिल नाइक। विंडिंग फ्लाइंग स्लिप गलीब, उसके साथ पॉइंट एक्स्ट्रा का लॉग अप। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर डी स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, मिड विकेट पर खिलाड़ी, एक खिलाड़ी लॉग ऑन पर मौजूद है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्ट्राइक रन पर लोकेश चौहान, जिनके ऊपर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गाजियाबाद से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी। स्कोर 30 for 5। हवा में गेंद मिड विकेट पर, बॉडी लाइन पर, क्या रनिंग कैच हो जाएगा। थोड़ा लेट रिएक्ट हुए बादल भाई, आप थोड़ा लेट रिएक्ट हुए। इस कैच को लपकने के लिए आपको थोड़ा जल्दी यहां आगे आना था और कैच छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर रूटा। इस वक्त दिलीप बिजवा के लिए बिल्कुल एक बहुत बड़ा मौका था। आपने कैच छोड़ा या मैच छोड़ा है, ये तो नाना बाद में पता चलेगा। धीरे धीरे अपने बोलिंग मार्ग पर दिलीप बिजवा पहुंच चुके हैं। 34-5 विकेट के नुकसान पर आई माउली कुडाल की टीम। 5वां ओवर, चौथी गेंद लेके गेंदबाज दिलीप अपने बोलिंग मार्ग पर तैयार सामना करने के लिए। जोएल नाइक कमाल के खिलाड़ी है, लेकिन एक अलग सिचुएशन है। यहां से आपको बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी। इस ओवर की अगली गेंद, अच्छा ड्राइव है, कवर पर एक खिलाड़ी, एक लॉन्ग पर खिलाड़ी है और खराब फील्डिंग। अक्षय ने खराब फील्डिंग की। पहले बिल्कुल वो बादल ने काम किया था और दूसरी बार गलती हुई है। आप तब नहीं हारते जब आप गलतियां करते हैं, आप तब हारते हैं जब आप गलतियों को दोहराते हैं। एक बार बादल ने गलती की, अब जाकर वो अक्षय साहब मैदान के अंदर है, इन्होंने गलती की है। और उससे पहले बादल ने बबलू वहां मौजूद थे, तो दोनों ने गलती की है। खराब फील्डिंग। स्कोर 38-5 विकेट के नुकसान पर आई माउली। ड्राइव किया अपने फॉलोथ्रू में, बिजवा साहब ने रोक लिया। रन बनाने का कोई मौका नहीं है। 19 गेंदे 26 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर कांटे की टक्कर चल रही है। दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। सुरेश रैना ग्राउंड पर। अब धीरे धीरे दर्शकों की संख्या बढ़ रही है और रोमांच भी। और एमसीटी ओवर भी आना बाकी है। बढ़िया लाइन। वरद साहब आइए, गेंद को फील्ड कीजिए। आपका गेंद पीछा कर रही है। बहुत बार नाना मैंने देखा है, आप खराब फील्डिंग करते ना तो गेंद आपका पीछा करती है, लेकिन फिलहाल वरद साहब ने बेहतरीन फील्डिंग की है और आज उनका गेंद पीछा कर। 18 गेंदे 25 रनों की जरूरत है। नाना क्या लग रहा है, कौन जीतेगा ये मुकाबला? आप किसकी तरफ जाना चाहेंगे? दोनों टीम की बात की जाए तो अनुभवी खिलाड़ी है। खासतौर से एमसीटी ओवर है जो सभी खिलाड़ी 30 के दायरे के अंदर रह गए, वो गेंदबाज के ऊपर रहेगा। खासतौर से वही कोशिश रहेगी जोएल नाइक की इसी ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बनने चाहिए। तो कुल मिला के स्कोर बनता है 39 रन स्कोर बोर्ड पर। उनके साथ लोकेश चौहान भी है, वो भी अनुभवी खिलाड़ी है। तो वरद दाभोलकर जो एमसीटी ओवर का जिस पिछले मुकाबले की याद करने वाला मुकाबले में एक मेडन ओवर भी डाला था, वो खिलाड़ी मैदान पर देख रहे हैं। सभी के खिलाड़ी 30 सर्कल के देखा रहे। दिलीप बिजवा का भी ए ओवर का विश्लेषण सर 8 रन खर्च के और एक सफलता हासिल की थी, वो दिलीप बिजवा का विश्लेषण। और वरद को बुलाया गया। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी वरद द्वारा 7 रन दिए थे। ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण। 18 गेंदे 25 चाहिए। इस ओवर में कम से कम रन देने का प्रयास। 6-7 भी बनते तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं बनने चाहिए। ये तो वो एक बार फिर वरद कमाल का काम करने के लिए तैयार। लेकिन एक एंड पर जोहेल नाइक 11 गेंदों में 13 पर खेल रहे हैं। 118 का स्ट्राइक रेट है। 2 चौके जड़ चुके। लोकेश चौहान की बात करें तो 1 पर बल्लेबाजी कर रहे, ज्यादा इनको मौका नहीं मिला। एक गेंद का सामना किया।
फ्लैंक पर खिलाड़ी, पॉइंट कवर पर खिलाड़ी, एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात, वरद तैयार, मैजिशियन तैयार, जादूगर तैयार, हिस्ट्री बॉलर है हिस्ट्री तैयार करने के लिए। इस बार बैकफुट में चले गए, ऑन साइड पर गेंद को दे घुमा के खेल दिया, बॉडी लाइन पर डीप मिड विकेट, बॉडी लाइन के बाहर। अंपायर का क्या फैसला, चौका या छक्का, चौका या छक्का? अंपायर इशारा करते हुए ये बेहतर काम किया, ये ज्यादा बेहतर काम किया। आपके मन में डाउट है तो किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक रन इंपॉर्टेंट है, चाहे बल्लेबाजी करने वाली टीम हो या गेंदबाजी करने वाली टीम। अब दिल की धड़कनें तेज होने वाली है, सैंडी साहब भी कुछ कम नहीं है, वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ना क्या लग रहा है, चौका या छक्का? आप देख सकते हैं क्या चौका हो छक्का, मेरे ख्याल से बिल्कुल करीबी मामला होगा, चौका या छक्का हो, देख सकते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर जांच करेंगे जल्दी से, लेकिन देखना चाहिए। वरद दाबोल कर गेंदबाजी कर रहे, स्कोर 39-5 विकेट के नुकसान पर। तमाम प्रेक्षकांना विनंती आहे जे आत मैदानावरती आहेत, मैदानाच्या आतमध्ये आहेत, बाउंड्री लाईनच्या थोडे बाहेर बसलेले आहेत, तुम्ही कॅच पकडण्याकरता पुढे येऊ नका, कारण निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे, धावा देखील महत्त्वाच्या आहेत, एक एक धाव अतिशय महत्त्वाची आहे आणि हा क्रुशियल मॅच आहे दोन्ही संघांसाठी। 39 for 5। वरद दाभोलकर फिलहाल गेंदबाजी कर रहे, पहली गेंद टप्पा खाने के बाद घुमावता, लेकिन शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पर जोहेल नाइक के लिए समय मिला, थोड़ा सा पीछे चले गए, एक अच्छी पोजीशन बनाई, शरीर का संतुलन बनाया और ये गेंद बॉडी लेने के बाद 4 रन। चौका या छक्का, बल्लेबाज का इरादा है पक्का और ये लगा शानदार एमसीटी चौका। जोहेल नाइक इज प्लेइंग ऑन 17, स्कोर 43 for 5। 17 गेंद में 21 रनों की जरूरत है। वरद दाभोलकर गेंदबाजी करने के तैयार, ऑफ साइड पर फिलहाल 4 खिलाड़ी दायरे के अंदर मौजूद, ऑन साइड पर भी यहां देखिए ये 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी हैं। एमसीटी ओवर, सारे खिलाड़ी दायरे के अंदर। अब जाकर ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी, लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक, गूगली, फास्टर वन, वेरिएशन के पास जब बढ़ जाता है टेंशन तो बढ़ना चाहिए कंट्रीब्यूशन। 43-5 विकेट के नुकसान पर आई मौली बकुडाल। इस बार भी बैक पर चले गए, स्क्वायर लेग बॉडी लाइन की तरफ गेंद को खेल दिया है, ब्रिलियंट बैटिंग जोहेल नाइक, व्हाट अ शॉट, बल्ला घूमा और मैदान झूमा, तालियां बज रही है, दर्शक दीर्घा में तालियां बज रही है। हेलो, इस्तेमाल जोहेल नाइक का, स्कोर 49 for 5। वरद तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, इस ओवर में 2 बार गेंद बॉडी की तरफ चली गई। आगे रखिए, आपने गलती क्या की थी, बिल्कुल जो गेंद थी वो छोटी थी और बल्लेबाज बैकफुट पर है, तो इसका फायदा जोहेल नाइक को मिला। अभी थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर से ऑफ ब्रेक किया, गेंद को अंदर की तरफ लेके आए हैं, बहुत बढ़िया गेम, और गेंद को थोड़ा आगे भी रखा गया था, ज्यादा फ्लाइट नहीं थी, चतुराई के साथ वरद ने गेंदबाजी की है। 49 for 5, 15 गेंदों में 15 रनों की जरूरत है। इस ओवर की अगली गेंद, ये थोड़ी तेज गेंद है, क्या आवाज आई थी वो देखना बहुत जरूरी है। फुटबॉल खेल रहे, विकेट कीपर फुटबॉल खेल रहे, क्रिकेट में फुटबॉल। मतीन खान इस मुकाबले में डालना चाह रहे जान, टीवी रखे ऑन, गेम इज ऑन, और सुरेश रैना ग्राउंड, कुरेश रैना मैदान इंतजार कर रहा है रोचक मुकाबले का। 55 विकेट के नुकसान पर 14 गेंदे और 14 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला है, बराबरी का मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है। घुमटेश्वर आई माउली कुडाल, रात के समय में थोड़ा ठंडा माहौल है लेकिन मैच गर्म है, मैच गर्म है। गेंदबाजी कर, गेंदबाज बहुत तैयार, ओ ये गेंद टप्पा खाती बाहर की तरफ निकली है। ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक कर सकते हैं, चाहे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हो राइट हैंडर बल्लेबाज, इनके लिए कोई परेशानी नहीं होती। बेहतरीन गेंदबाजी, 13 गेंद में 14 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। क्या कमाल का मैच, दर्शक काफी संख्या में मौजूद है और दर्शकों का पूरा मनोरंजन होता बा। एमसीटी पर 2025, 13 गेंदों में 14 रनों की जरूरत ये मुकाबला जीतने के लिए। लोकेश इस पर स्ट्राइक रेट पर, अलग अलग गेंदे इनके पास है,
चार अलग अलग गेंदे, लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक, फास्टर बर्नर, गुगली। हवा में गेंद बहुत ऊपर, क्या ये दिलीप बिजवा साहब कमाल करेंगे? गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ 6 रनों के लिए। लोकेश चौहान के बल्ले से गगनचुंबी सिक्सर, हाई फ्लाई इनटू द स्काई। गेंद कर रही है टाटा बाय बाय एमसीटी, गगनचुंबी सिक्सर। क्या बल्लेबाजी हो चुके हैं, बेहतरीन छक्के के साथ यहाँ पर स्वागत किया है छक्के वरद दाभोलकर की। जिस समय चर्चा कर रहे थे, जिस खिलाड़ी से सराहना कर रहे थे, उस बल्लेबाज के ऊपर हावी हुए। मैदान पर जिस शेर की आप चर्चा कर रहे थे सरना, वो शेर देखिए, शेर जैसी बल्लेबाजी मैदान पर हुई है। वो जोहेल नाइक ने क्या बल्लेबाजी हुई आई मौलिक कुडाल क्रिकेट टीम के लिए। जी हाँ, सैंडी जी आइए, आपका समय हो गया है। 24 पर खेल रहा है जोहेल नाइक। एक 160 का स्ट्राइक रेट, एक सिक्सर और 3 चौके इनके बल्ले से आए और बेहतरीन बल्लेबाजी, गजब की बल्लेबाजी रही है। लोकेश चौहान ने एक छक्का जड़कर प्रेशर को रिलीज किया है। 12 गेंदों में जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। दिलीप बिजवा का ये दूसरा ओवर, पहले ओवर में 8 रन और एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता इन्होंने प्राप्त की थी। और लोकेश चौहान का स्ट्राइक रेट 233 का है। गेंद को ड्राइव किया, खूबसूरत कवर ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर पर भरत गेंद को फील्ड करते हुए, लेकिन 1 रन आप नहीं बचा पाएंगे। 11 गेंदे 7 रनों की जरूरत है। 57 5 विकेट के नुकसान पर नाना, क्या इस मैच में कोई पलटवार होगा? अगर मैच में आप 2 विकेट लेते ना तो एक बार फिर कमबैक करने का मौका मिल सकता है आपके लिए। गुमटेश्वर, आई मौलिक कुडा, 2 तगड़ी टीमें मैदान के अंदर। भाववैन स्पोर्ट साइरास मालवन इंतजार कर रहा है, आई मौलिक कुडाल या गुमटेश्वर। जी हाँ, 2 बार आपने वो खराब फील्डिंग की है ना, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उड़ास मार की तरफ बहुत दूर खिलाड़ी है, मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन की तरफ, और ये कैच दोबारा वही खिलाड़ी बादल ने दूसरी बार कैच छोड़ा है। एक बार आपने देखा बबलू ने खराब फील्डिंग की थी, एक बार अक्षय ने खराब फील्डिंग की थी। दिलीप बिजवा वही गेंदबाज, लेकिन ये कैच, इस तरह के कैच आप इस लेवल पर 10 लाख का टूर्नामेंट है तो ले सकते थे। बहुत ही खराब फील्डिंग हुई, ग्राउंड फील्डिंग खराब, आप कैचेस नहीं ले रहे हैं, आपके पास बैंक बैलेंस 64 का है, 10 गेंदों में 6 रनों की जरूरत है। गेंदबाज तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अकेले बेचारे क्या कर सकते हैं। 58 5 विकेट के नुकसान पर। ऑल साइड पर पुल शॉट, फुल टॉस गेंद पर बल्लेबाज बने इस वक्त बॉस। शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज का, मैकगिनबिस स्ट्रोक, 6 रन, कड़क शॉट। और इसी के साथ आई माउली ने यह मुकाबला अपने नाम पर किया है। 19 पर 4, और उसके बाद में जबरदस्त प्रदर्शन जोहेल का। मैकगिनबिस बॅटिंग, आणि जोहेलची बॅटिंग तुम्हाला आवडली असेल ना तर एकदा टाळ्या ठोका, टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या। आउटस्टैंडिंग लोकेश, आपने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वरद के खिलाफ जो एक बहुत महत्वपूर्ण ओवर था जहां सारे खिलाड़ी दायरे के अंदर थे, उस वक्त लाजवाब प्रदर्शन किया, वरद को अनसेटल किया और जोएल ने इस मुकाबले में जान डाली है। अब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड थोड़ी देर के बाद दिया जाएगा। सैंडी जी तब तक आइए, एक मीठा सुपरहिट गाना सुनाइए।